So looking at the title, the creator, it looks like there is something new and amazing. What you would like to say about it? It is a unique kind of a title, no doubt about it. And the most happiest part of this particular film, the creator is my very, very dear friend, more a brother, I would say, Dayanand Shetty. That is, I mean, we all come from the same background of CID. Daya plays Inspector Daya. So for me, he is a co-producer of the film and he plays the lead role in the film. So it's a double whammy kind of a happy thing for me. That is one. Secondly, it's the thought that Mr. Hingonia has put up in the creator is very unique, very idealistic. And it really makes you think, wouldn't it be so wonderful, this world would be so beautiful if this thought that he has tried to portray, what Daya has put up, uh, Dr. Ray has put up, would make such a beautiful world that we live in. There wouldn't be any hatred, there wouldn't be any fight, there wouldn't be any killings. It's just love, love and love. So for me, it is an idealistic thought. I don't know whether uh, when and when it will happen, but I always wish this happens because I belong to this thought that the creator film has put up. So for me, it's a nice film. I wish everybody sees the film rather than going into the technicalities or anything. The thought itself, one should carry it home. And it's also a theatrical, it gives me another perspective to the film. I mean, why this can become a wonderful play also. Because it conveys that. It's a universal thought, a universal idealistic thought again. But I hope the world becomes like this sometimes, yeah. दया का हमेशा से हमने रूप देखा था दरवाजा तोड़ते हुए, लेकिन इस बार कुछ अलग है, कुछ एक अलग ही अलग है अंदाज अलग है है। अलग है और सिर्फ एक ही सीन में एक्चुअल जो दया का वो जो खाली दरवाजे नहीं थे उसके बदले में वो विलन थे उनको तोड़ा था बाकी इज डन अ वंडरफुल जॉब सडनली यू सी दया इतना युग इतना ये और वो कैसे दिखेगा क्या करेगा द होल फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ pleasant surprise to see Daya in such a different kind of a portrayal. So for me, again, I come back to the creator. It is a unique title and a unique kind of a film. I think this thought has never been put up in films or in theatre. So all my best wishes for this film, absolutely. And I think people should watch it at least for the thought. As I again say, there are no known faces or no big stars in it. That is all the more so. The film should be watched by everybody. क्या आने वाले दिनों में हम आप सभी को एक साथ में एक नई कोई पिक्चर में देखेंगे? हो सकता है, who knows? There are, I mean, our producers and a few of them are trying to pitch the subject. It can't be same CID again, but yeah, why we three? Most of us would be in that project, and I'm looking forward to it. I just pray that it happens. Is it so? Can we see something new, just like CID, the same concept? Because people still want to see these, like all that things which was before. They were like very excited. What will be the outcome? I What know, will be I the know. next year? And very honestly, see, we also are like how you are a common audience. So everybody loves the thriller, everybody loves the mystery. It's just the way it is presented. It's like the same thing. दाल चावल अलग अलग किस तरह से पेश करोगे वो है. So it appeals to the palate. So definitely it will be in a different kind of a format. That is what I hope. Nothing has fructified or nothing concrete has come. But then I definitely know that there are guys very close to us who are trying to bring it back, bring all of us back. May not be CID, but it could be the same kind of a genre, same subject, but in different this. Is there any new project which will be coming up here which you would like to share? Yeah, for me, Yeah. yeah, I've done a film called Mahim. Uh, I don't know whether it will be in OTT or in the film. It's a lovely subject. Again, a unique kind of a character, not the same inspector kind of a thing. Then there's another wonderful, again, unique kind of a film in Marathi called Bamboo. Again, it's a different kind of a character. So I'm enjoying myself. Lastly, what will be the message to the all the fans in your Andaz, which was very unique?
क्रिएटर ज़रूर देखिएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। द क्रिएटर्स टाइटल सुनते ही ऐसा लगता है कि वाकई ये कुछ अलग ही होगा क्योंकि कुछ क्रिएट किया गया है। हाँ जी, क्या है वाकई ये प्लीज आप बताइए। जैसा कि आपने ट्रेलर देखा और आप अगर टाइम से आए होंगे तो फिल्म भी आपने देखी होगी। द क्रिएटर जो है वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और अगर दुनिया में हो जाए कि नो बाउंड्रीज, नो लैंग्वेज, नो धर्म, सब एक सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानव धर्म है, और एक ही लाइक विदाउट बाउंड्रीज, लाइक आज़ाद पंछी की तरह अगर पूरी दुनिया ऐसी हो जाए तो मतलब बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। एक दुनिया में जीने का मज़ा आ जाए, इस तरह की चीज़ें अगर हो जाए तो थोड़ा सा सिस्टम को और थोड़ा सा दुनिया को चेंज करने का एक जो बीड़ा उठाया वो इस फिल्म में है। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। क्या लगता है जो चीज़ें दिखाई गई है जी। वो लोगों को कितना आई एम श्योर कि लोगों तक अगर ये पहुंचेगी तो डेफिनेटली उनका माइंड थोड़ा सा चेंज होगा, और उनके दिमाग में भी है आगा कि नहीं यार, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो बेकार की हैं। जैसे इसमें एक फिल्म में एक डायलॉग भी है कि अगर धर्म से बड़ा कुछ, मानव से बड़ा कुछ भी नहीं है, सारे मतलब धर्म को मार के अगर मानव को बचाया जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा ऑडियंस में अगर ये लोगों तक पहुंचेगा प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी हम आपके और भी कोई अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट हाँ, इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। उसमें जैसे ये है द क्रिएटर है, उसके बाद पठान एक फ़िल्म है यशराज की, एक हरि ओम हरि एक फ़िल्म है, एक उधमगढ़ करके एक सीरीज़ है, एक और फिल्म है बगावत। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं आने वाले हैं। देन मिर्ज़ापुर 3 भी है जी। लास्टली फाइनल क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमने जो प्रोजेक्ट किया है, अभी तो क्रिएटर की बात करेंगे, द क्रिएटर की, तो हम लोगों ने सबने बड़ी शिद्दत से इसमें मेहनत की है, और आप सबसे यही कहना है कि इस मैसेज को आगे लोगों तक पहुंचाएं और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। वाकई बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आपको एक कोई नए प्रोजेक्ट में देख रहे हैं द क्रिएटर। द क्रिएटर सुनते ही पहला सवाल ये है कि टाइटल तो कुछ नया क्रिएट दिखा रहा है, तो आप बताइए वाकई ये है क्या? क्रिएटर बेसिकली इज सिनोनिम विद जो हमारे रचयिता हैं, जो इस पृथ्वी को बनाते हैं, ही इज़ अ क्रिएटर। भगवान शिव बोल सकते हैं, तो वो क्रिएटर है, वो करता धरता है, हर चीज़ वही करता है। हम लोग बाकी के जो आडंबर है लाइफ में, धर्म, मज़हब, नाम, सोच, विचार के हिसाब से हम लोग बटे हुए हैं। तो वो क्रिएटर है, उसने हमें ये सब नहीं डाला, हम लोगों ने आपस में ये सब डेवलप किया है। इस फिल्म में भी यही एक लेसन है लोगों को सीखने के लिए कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठें। आज की तारीख में जो हो रहा है चारों तरफ, पूरी दुनिया में हो रहा है, नॉट इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंटॉलरेंट हो गए लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति। क्यों हो रहा है ये? सिर्फ यही एक मैसेज है कि भाई हम लोग थोड़ा वाइड थॉट रखें, अपने जितना विजन है उसको थोड़ा और वाइड करें, और थोड़ा ग्राउंड पे रह के ज़मीनी स्तर पे सोचें। कुछ नहीं है, कल को सब मरने वाले हैं, फिर भी हम आपस में मारकाट करने में लगे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। दैट्स अ थॉट। जिस तरीके से हमने ट्रेलर देखा, आपका एक नया ही रूप दिख रहा है। लाइक लोग ऐसे ही दिख रहे थे, पहले जब दया सर को हम देखते थे सीआईडी में, उसके बाद ये कुछ अलग ही नया लुक है। कितना आपको अच्छा लगा है ये किरदार? मतलब लुक, इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर। वो जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मतलब कम्युनल राइट्स में काफ़ी उसका नुकसान हुआ, उसके बीवी, उसके बच्चे मारे गए हैं, तब से वो पागल है। तो वो सब दुनिया से मतलब वो लिटरली अलूफ है, अमेरिका में कहीं पड़ा हुआ है, तो उसको कोई सेंस नहीं है, बाल वाल नहीं काट रहे, तो बड़े हुए। और लुक को लेके काफ़ी लोग पॉजिटिव है, बोलते हैं अच्छा है, काफ़ी बोलता है यू नीड अ ट्रिम। तो डिपेंड्स, किसी को शायद पसंद आएगा, किसी को नहीं, बट दैट इज़ द लुक ऑफ द कैरेक्टर। आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर, फ्रेंड्स एंड फैमिली के क्या रिएक्शंस थे? बिकॉज आज भी आपके सीरियल में बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ हैं। हाँ, मतलब दे आर कीनली वेटिंग कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, देखना चाहते हैं वो फिल्म। तो लेट्स सी, फैंस को वो जल्दी मिले, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म रिलीज़ हो। सीआईडी के बाद फिर से लोगों के अंदर वही क्रेज़ है कि कब एक साथ आप सबकी जिस तरीके से टीम होती थी फिर से कब देखने मिलेगा? क्या कुछ आप कहना चाहोगे? टीम साथ में आएगी, बड़ा सीआईडी नहीं आएगी, क्योंकि वो जो ब्रांड है वो किसी का कॉपीराइट है, तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं।
टीम साथ में आएगी, हैज़ कॉप्स, हैज़ इन्वेस्टिगेटिंग कॉप्स, बट ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म, और उसको करेंगे बहुत जल्द। मतलब अभी थोड़ा माहौल थोड़ा गर्माया हुआ है, तो बहुत जल्दी करेंगे। कि फिर से एक नया अंदाज देखने मिलेगा दया का, जिस तरीके से पहले हुआ करता था कि दरवाज़ा तोड़ने वाला। अब ये तो व्यूअर्स के ऊपर है, ऑडियंस के ऊपर है, कैसे पसंद करते हैं। हम अपना 100% देंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। और एक कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, वो दिल का रिश्ता है। उन्हीं लोगों ने हमको अभी तक सस्टेन किया है, आगे भी वही करेंगे। आने वाले दिनों में और भी कौन से अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स आपके देखने मिलेंगे? प्रोजेक्ट्स 1-2 फिल्में हैं, एक हिंदी फिल्म है, इसके अलावा और एक मराठी फिल्म भी की है मैंने, वो भी शायद 1-2-3 महीने के अंदर रिलीज़ होनी चाहिए। लेट्स सी। लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज होगा आपके अंदाज में? फैंस के लिए वही है, मैं तो मतलब हमेशा शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्हीं की वजह से हम लोग 21 साल सीआईडी को सस्टेन कर सके, और उन्हीं की वजह से हम लोग हैं। आगे भी वही हैं हमारे करता धरता। फिल्में करते रहेंगे, वेब सीरीज़ है, कोई भी शोज़ है, हम आप ही के लिए करते हैं। आप पसंद करेंगे तो हम सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज कांट हेल्प। थैंक यू सो मच। द क्रिएटर नाम सुनते ही पहला सवाल ये है कि द क्रिएटर है क्या? आप इस पिक्चर के एक हिस्सा है, तो प्लीज़ आप बताइए है क्या? द क्रिएटर का मीनिंग होता है सृजनहार, जो पूरी ब्रह्मांड सृष्टि और जीव सृष्टि का सृजनहार है। और हम लोग अलग अलग मानते हैं, वास्तव में हमारा एक ही है जिसने ये पूरी ब्रह्मांड सृष्टि बनाई है, उसका संचालन कर रहा है और संभाल लेना है। तो अलग अलग मानने वाले ने उसकी वजह से नफरत होने लगी। तो मैंने ये सोचा कि कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई आरती करता है, कोई नमाज करता है, तो ऐसी कोई ढूंढे जो जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर कुछ चेंज आए। तो एक टाइटल ऐसा मिल गया जो एक्सेप्ट कर सके, और नाम अंदर से ऐसा मिला कि भगवान, अल्लाह, गॉड, उसका मीनिंग एक ही होता है कि हम किसी को पुकार रहे हैं, अलौकिक शक्ति को, जिस शक्ति को हम नाम दे रहे हैं सिर्फ अल्लाह, भगवान, गॉड, उस शक्ति के बारे में हमने इस मूवी के अंदर ट्राई किया है। और वहाँ पर जिसको हम पुकार रहे हैं वहाँ पर मजहब नहीं, उसकी बनाई रचना में मजहब नहीं, उसकी सारी चीज़ों में मजहब नहीं। तो यहाँ पर हमें आकर मजहब किसने बनाया, तो ये पता चला इंसानों की वजह से मजहब बना, और इंसानों की वजह से ये मजहब की जगह नफरत होने लगी है। सभी कास्ट को किस तरीके से सेलेक्ट किया आपने, कौन से बेसिस पे? हाँ, कास्ट में मैंने बहुत सारे लोगों को ट्राई किया, लेकिन नया प्रोड्यूसर था तो बहुत हमें हड़बड़ी होगी। हमने अनुपम खेर को भी बताया था, आशुतोष राणा, सारे लोगों को, लेकिन वो कोई बिजी थे, व्यस्त थे। फिर ये सारे लोग नए भी थे और दयानंद जी पुराने थे, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कहीं तो मैसेज अच्छा होना है। आज की क्या है, स्क्रिप्ट हीरो होता है। फिर मैंने सोचा कि स्क्रिप्ट हमारी बहुत मजबूत है, कोई भी एक्टिंग कर लेगा, कोई भी बात कर लेगा तो मैसेज चला जाएगा। तो गुरदीप कोहली है और सुरती फुलराज, आर्यन बब्बर, दयानंद सेठी, रोहित जी और सारे लोगों ने ये काम किया है। आने वाले दिनों में और भी कोई अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे? हाँ, ये जैसे मजहब ख़त्म किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टॉप द वॉर। ये देखो आजकल तालिबान का युद्ध हो गया, इराक पर अटैक हुआ, अभी रूस कर रहा है, तो ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्या मिलते हैं उन लोगों को, उसके बारे में सोचूंगा। युद्ध नहीं होना चाहिए, हिंसा नफरत नहीं होनी चाहिए, और ये सारी दुनिया में आज़ादपन की तरह इंसान घूमना चाहिए। क्या मिलता है उन लोगों को, कुछ प्राप्त करने के लिए ही लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों को इंसानियत को भुगतना पड़ता है। तो मैं सोचूंगा कुछ अच्छा हो जाए। और लास्टली सभी लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिन लोगों ने इस ट्रेलर देखा हो या जो आए हैं मेरे यहाँ, तो मैं उसका रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सोच लो कि जो नफरत हिंसा हो रही है होनी चाहिए। आप जानते हैं क्या होते हैं उसके सर, उसके घर पर क्या बीती होगी, अगर आप पर कुछ होता है तो क्या होता है। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये हिंसा नफरत मजहब के नाम पर ख़त्म कर दो, और सभी लोग प्यार अमन से रहो। ज़िंदगी जो जितनी ज़िंदगी मिली है इस पृथ्वी पर, एक दिन तो जाना है, हम छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर क्यों एक दूसरे की ज़िंदगी मौत छीन करते हैं। ये तांडव बंद कर दो, यही मैसेज देना चाहूँगा। आओ मिलकर जी लेते, स्वर्ग जैसी दुनिया को अपना लेते हम। What you would like to say about The Creator, what it is all about? Because people are very eager to know about it. The title says something. जी क्रिएटर बेसिकली मूवी है एक विश्व एक धर्म की एक कल्पना है, और ये कॉन्सेप्ट हमारे प्रोड्यूसर का है, हमारे गुरुजी का है। और जब वो कॉन्सेप्ट लेके आए मेरे पास कि मतलब मैं ऐसी एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, मेरा एक मिशन है, एक मैसेज है, जो मैसेज लोगों तक पहुँचे। तो मुझे वो जो थॉट है, वो जो मैसेज था, वो बड़ा खूबसूरत लगा।
बट खाली मैसेज से कुछ होगा नहीं। इसको फिल्म में ताना बाना बुनना था, तो हमने ये 6 कैरेक्टर क्रिएट किए। जश्न, भुवनेश, रोहित, अलीज़ा, हिमानी, ये 6 बच्चे क्रिएट किए। फिर डॉक्टर ए का कैरेक्टर किया और इन कैरेक्टर को बुनते 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 हम अदालत तक लेके गए और अदालत में जो हम बात कहना चाहते हैं वो हमने उसमें कहने की कोशिश की। और हमारी ऐसी एक सोच है कि अगर पूरे विश्व की बॉर्डर ख़त्म हो जाए, पूरा विश्व एक हो जाए, पाकिस्तान इंडिया हो जाए, चाइना इंडिया हो जाए, या मतलब पूरा विश्व में एक ही हो जाए, पूरा विश्व एक हो जाए, सारी बॉर्डर हट जाए, एक विश्व एक धर्म। अगर ये कल्पना आप सोचो, 5 मिनट इमेजिन करके सोचो यार, कोई बॉर्डर नहीं, कुछ नहीं, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। अगर बॉर्डर नहीं होगी तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, है ना, तो वो सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारी यही कोशिश है कि मतलब पूरे विश्व में ना शांति हो जाए। और हमारी फिल्म से अगर 2 लोग भी सुधरते हैं और जो ये धर्म के ठेकेदार हैं वो सुधरते हैं, और क्योंकि जो जहरीली जो सोच है, जहरीली सोच का अंत तब होगा जब जहरीली राजनीति का अंत होगा। ना धर्म बुरा ना मज़हब बुरा, दोनों को लड़ाने वाले सियासी इंसान बुरे, ठीक है ना। एक तो हमारी ये सोच है। दूसरी, हम एक और मैसेज देना चाहते हैं कि आप खुद में बिलीव करो। अगर आप कुदरत में बिलीव करते हो तो कुदरत आप में बिलीव करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प हिमसेल्फ। अगर आप अपनी जो चाहत है उसको इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश करो ना, तो पूरा कुदरत वो गतिविधि होने लगती है, पूरे कुदरत में वो बातें होने लगती है, और पूरी कुदरत जो है प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगती है, और आपके साथ अपने आप ही वो ताना बाना बुड़ने लगता है। इट्स अ मोर वी लेस में, ये पूरा टीम वर्क है। मुझे मतलब मैं ब्लेस हूँ कि फिल्म बनाने में मुझे इतनी अच्छी टीम मिली। मेरे एसोसिएट अनुज, मेरे चीफ एडी कृष्णा, मतलब ये मेरे मतलब मेल हनुमान है, मैं फीमेल हनुमान है। ऐसी हमारे जो डीओपी हैं, हमारे जो एडिटर हैं, पोस्ट हैं, मतलब हमें सब इतनी अच्छी टीम मिलती गई। और गुरुजी जब ये कारवा लेकर निकले थे, इस थॉट को लेकर निकले थे, तो कुदरत अपने आप ही अच्छे लोगों को जोड़ती चलेगी, अच्छे लोगों को जोड़ती चलेगी, और ये फिल्म कंप्लीट हो पाए। अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम आप कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक शेड्यूल में होता ही नहीं है। मतलब मैं पहला डायरेक्टर हूँ जिसने रिटर्न टिकट पहले कराई थी सारे एक्टरों की। और सारे एक्टर बोलते थे, दया सर भी बोलते थे, यार रिटर्न टिकट मतलब पहले आने की टिकट तो बताओ। तो जो हमने जो पेपर में डिसाइड किया था इस दिन शूट खत्म होगा, उसी दिन ख़त्म हुआ। तो कुदरत ने हमें साथ दिया, सपोर्ट बनी। और आपने ट्रेलर देखा, आप हमारी सोच को लोगों तक पहुँचाओ। हम चाहते हैं पूरे विश्व में ये सोच जाए और पूरे विश्व में परिवर्तन आए। पूरे विश्व में अगर 10 लोग भी हमारी सोच से प्रभावित होकर उस चीज़ को अमल में लाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, है ना। यूथ जो है, आज जो यूथ है, आज यूथ को ना उनका माइंड करप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनके माइंड को सही रखने की ज़रूरत है। उनके माइंड को सही रखो, उनको सही दिशा दो कि भैया ये मतलब आपस में नफरत मत करो, क्योंकि धर्म ये सिखाता ही नहीं, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता। धर्म तो इतना प्यारा चीज़ है कि वो मतलब जोड़ना सिखाता है, वो अच्छा इंसान बनना सिखाता है। तो हम ये सांप्रदायिक दंगों की आंधी में क्यों घुस जाते हैं? और जब ये दंगे होते हैं, कोई भी एक मारने वाले ने कभी सोचा है कि जो एक माँ मरती है, उसके जो एक आदमी मरता है, उसकी माँ पर क्या असर होता है? जो सांप्रदायिक दंगों में एक आदमी मरता है, उसकी पत्नी पे क्या असर होता है? उस बच्चे पे क्या असर होता है जो अनाथ हो गया? तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे उससे परिवर्तन आए। और थैंक यू। Firstly, looking at the movie The Creator, the name says that there is something. What you would like to say about it? One word for it is different. It's a movie with a mission. It's a movie with a very good message, and it's made beautifully. And I think each one of you should go and watch this film because बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं। इट्स गॉट एन ensemble कास्ट, बहुत बढ़िया कास्ट है इसकी। एंड आई वर्क विद प्रवीण एंड आई ऑलवेज फील कि नए लोगों के साथ मैं हमेशा काम करती हूँ बिकॉज प्रवीण आई हैव एक्टेड एज एन एक्टर विथ, एंड व्हेन ही अप्रोच्ड मी फॉर द फिल्म आई एग्री टू डू इट ओनली बिकॉज ऑफ हिम। मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस है फिल्म में, बट नॉनदलेस आई फेल्ट इक्वली इन्वॉल्व इन द फिल्म बिकॉज ऐसी अच्छी फिल्में बननी चाहिए, लोगों को देखनी चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए। और आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो ये फिल्म बहुत ही वैलिड है और हर किसी को देखनी चाहिए।
what is the best part in this film? Because every films give us some of the message. The best part about this film is, of course, the ensemble cast, the storyline, the performances, and the message. Is it so we are going to see you any more like in the pipeline, any projects which you Oh yes, lots in the pipeline, lots in the pipeline. In the next coming year, there are about 7 to 8 film releases. There's 2 webs. Then Amazon Pay, there's a short film. Then there is a music video. There's a lot of work coming up. I'm also looking forward क्योंकि जो अब तक रुका हुआ था because कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें जो रुकी हुई थी and there are good releases. I have my fingers crossed. I'm waiting. मैंने भी अभी टीवी से स्टेप आउट किया है टोटली, तो मेरे लिए भी एक नया एक you know क्या उसको बोलते हैं, not opportunity, मेरे लिए एक नया वर्ल्ड है where I am also kind of finding myself. वेब है, there's so much to do, there's so much to explore. बहुत मज़ा आ रहा है. जब आपने बोला टीवी से अभी ये OTT वाले वेब सीरीज एंड ऑल, कितना डिफरेंशिएट होता है? You know, TV is a very big commitment. TV एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है. अब मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने इतने साल कैसे कर लिया, क्योंकि अब मेरे में शायद हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है इतना टाइम देने का. मैंने अभी कुछ किया था अपने फ्रेंड्स के लिए, बट नहीं, आई फील अभी थोड़ा सा रिजुविनेट करना है अपने आप को. आई वांट टू डू स्मॉलर थिंग्स जो 7-8-10 दिनों में ख़त्म हो जाएं, एक प्रोजेक्ट 15 दिनों में ख़त्म हो जाए. टीवी इज़ अ कमिटमेंट जो बहुत शिद्दत से आपको उसको निभाना पड़ता है, और अब शायद अब मेरा माइंडसेट वो नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि मैं टीवी को गुड बाय कह रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल एक आगे बढ़ने की उम्मीद, क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि हमें भी लगता है कि इतने सालों से टीवी किया तो सब कुछ आता है, लेकिन वंस यू स्टेप इनटू द न्यू वर्ल्ड यू रियलाइज दिस सो मच मोर टू लर्न. तो इस उम्र में कुछ सीखने को मिल रहा है. सो आई एम फीलिंग रियली गुड. Will you like to give any hint about your projects so that the audience should get excited? Yes. There is a movie with Vikas Bahl called Goodbye. Then there's a film with Mr. Diljit Dosanjh. There's a film with Sonakshi Sinha. There's a film with Yami Gautam, Pratik Gandhi. There's a lot. अभी in a row काफ़ी कुछ है. So I'm looking, and they're all with very good directors. And really grateful to God for. Lastly, what will be your message to all the fans who are loving? Bus, just watch the film, please. For the children's sake, they've done a very good job in the film, and for the message, it's got a very good message. Thank you.